Assalamu alaikum, dear students. Now the topic of discussion is pharmacology, and in this chapter we'll discuss the types of drugs, either medicinal and pharmaceutical drugs or addictive drugs, the types of antibiotics, vaccines, and mode of vaccine action. Now let's start with what is pharmacology. So pharmacology is actually the scientific study of effects of drugs and chemicals in living organisms. It's a branch of medicine and biology, and that combines the knowledge of many basic sciences like physiology, biochemistry, cell and molecular biology. Now let's start कि हम define कैसे करते हैं drug को. Now drug, what is drug? So drug is any substance that is used to prevent, diagnose, treat, or relieve symptoms of a disease or abnormal condition. Now let's start with the introduction. So, as you know, pharmacology is not a synonymous with the pharmacy. So, pharmacology is a study of the chemicals that are drugs which are used to alter the functioning of the body, while pharmacy deals with the manufacturing and production of the medicines. So, as you know, the prescription is required for any drug to be used by the patients. Now let's start with the introduction. So, as you know, pharmacology is the study of drug composition, properties, and medical application. So, the sources of drugs are also studied in pharmacology. क्लिनिकली फार्माकोलॉजी वॉज प्रेजेंट इन मिडल एजेस. सो जब से ज़िंदगी शुरू हुई है इंसान की, तब से ही फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिन और बहुत सारी, क्योंकि बीमारियों का सामना रहा है, सो ऑल द प्रॉब्लम्स एंड इलनेस आर treated with the medicines. So from the very early days, the human beings are using some medications for their treatment of the illnesses. Now, early pharmacology is focused on the natural substances and natural antibiotics, so mainly that is extracted from the plants. But in 19th century, it is properly considered as a biomedical science. So, whatever any substance that enters into the body and alters the normal body functioning are the drugs, and there are two types of drugs. Now, one type is the pharmaceutical drugs, which are used as a medicine, and other are the addictive drugs, which are when used by the body become familiar to it, and they are not working without that. Now the types of drugs that are medicinal or addictive. So medicinal क्या है जिसको हम एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं. So medicinal drugs are used in combination with the substances, and they are used to treat and prevent any problem and disease in the abnormal conditions. And addictive drugs are the psychoactive drugs जो डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिट करते हैं. So many problems that are associated with our central nervous system or nervous system, they are significantly treated with the addictive drug, and the person get used to of all these drugs, and उसके बगैर ही उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं होती. So many disorders, they are treated with addictive drugs. Now let's start with the medicinal drugs. So various drugs that have been made easier to treat in the recent years are by the production of medicinal drugs, and non-prescription drugs are sold over the counter because they are considered safe enough. For example, aspirin, डिस्प्रिन और बहुत सारी ऐसी पेन किलर्स हैं which are easily available, because they are not very dangerous, and they are not very they can easily be consumed by the patients. Now let's start with the what are the types of medicinal drugs. Medicinal drugs के क्या types हैं? So either they are synthetic drugs. Synthetic means जो totally wholly solely they are synthesized in laboratory. So pharmaceutical companies produce these drugs, for example aspirin, जो कि सिंथेटिक ड्रग है जिसको कम्प्लीटली लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया जाता है. Now drugs obtained from the plants and fungi. So many of the drugs that are obtained from the plants and from the fungi, these medicine includes antibiotics,
cardiotonics, and certain analgesics. So the antibiotic, the most familiar and the most common and the first antibiotic that was obtained from the fungus, that is the penicillin. And the cardiotonic, which is also called digitalis. Digitalis क्या है? ये वो ड्रग्स हैं जिसको हम हार्ट प्रॉब्लम को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं. सो ड्यूरिंग हार्ट अटैक वो जो सब लिंगुअल टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं जिसको ज़ुबान के नीचे रखते हैं, दे आर कॉल्ड द cardiotonic. So it is also made from the foxgloves, leaves of the foxgloves. So the pain reliever morphine is also obtained from opium, which comes from the juice of opium, that is the poppy plant. ठीक है. So ये तीन हैं जी. Penicillin, which is obtained from the fungi, some cardiotonics which are obtained from the foxglove, and the morphine which is obtained from the opium. Now many drugs obtained from the animals. For example, drugs obtained from animals usually from their glandular products, that is fish liver oil, musk, bees, wax, certain hormones, antitoxins. So they all are obtained from the animals. So उनके सब animal sources हैं. Minerals for example बहुत सारे ऐसी antiseptic they are mostly obtained from the mineral. For example iodine and pyodine जो बहुत घरों में आम commonly इस्तेमाल होता है. So several common drugs are produced from the mineral. The mineral iodine is used in making tincture of iodine, that is liquid, to prevent the infection. So they are usually used for as an antiseptic. So the powder from silver nitrate is also used to stop bleeding and prevent infection. आपने देखा होगा कुछ स्प्रे होते हैं, कुछ पाउडर्स होते हैं जिसको हम किसी भी वूंड पे लगाएं तो उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है. So many drugs are obtained from the bacteria like streptomycin, which is a very commonly used antibiotic. It is also obtained from the bacteria. So ये एक दिन में ये medicines नहीं बन जाती हैं. Researchers and pharmaceutical industries spend years and years to find out the new antibiotics. So the project resulting in the development of one of the antibiotic, terramycin, जिसको हम थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक भी कहते हैं, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जा सकता है. नाउ अब देखते हैं कि इन मेडिसिनल ड्रग्स का यूसेज क्या है. सो ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है, एक हमने क्लासिफिकेशन देख ली उनकी उनकी सोर्सेज की वजह से. दूसरा अब हम देख रहे हैं कि इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन. अब एनाल्जेसिक्स एंटीबायोटिक्स हैं, सेडेटिव्स हैं एंड वैक्सीन हैं. सो एनाल्जेसिक्स क्या है? एनाल्जेसिक्स आर द पेन किलर. फॉर एग्जांपल एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, इससे तो सब भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड एनाल्जेसिक्स हैं और इससे सब भी वाकिफ़ हैं. सो एंटीबायोटिक्स क्या हैं? आइदर दे इनहिबिट और किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन एंड सेफेलोस्पोरिन, ये दोनों एंटीबायोटिक्स के नाम हैं. सिडेटिव्स वो हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर देते हैं. सो इन सिडेटिव्स को हम रिलैक्सेंट्स भी कहते हैं. सिडेटिव इंड्यूस सिडेशन बाय रिड्यूसिंग इनहिबिटर और एक्साइटमेंट. फॉर एग्जांपल डायज़ेपाम. सो वैक्सीन्स क्या हैं? सो वैक्सीन्स आर यूज्ड टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो वैक्सीन्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, वूपिंग कॉफ, हेपेटाइटिस बी, ये सब वैक्सीन्स अवेलेबल हैं. और ये वो वैक्सीन्स हैं जिसको हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आने से पहले ही रोकने के लिए यूज़ करते हैं. सो इसको हम फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. एंटीसेप्टिक्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑन स्किन. एंटीबायोटिक्स इनहिबिट और किल बैक्टीरिया विद आवर बॉडी. एंड डिसइंफेक्टेंट destroy microorganism found on non-living object. सो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की आपको ये आप डिफरेंस समझ आ गया. एंटीसेप्टिक जो स्किन पे इन्फेक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्किन पर जो इन्फेक्शन हो उसके लिए हम उससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक. और हम किसी भी नॉन लिविंग सरफेस को बैक्टीरियल फ्री या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट. सो आयोडीन इज़ एन एंटीसेप्टिक और जो डेटोल यूज़ होता है विच इज़ द डिसइंफेक्टेंट. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन द
एडिक्टिव ड्रग्स। अब एडिक्टिव ड्रग्स में क्या है, इसमें है सिडेटिव्स हैं, नारकोटिक्स हैं और हेलोसिनोजेंस हैं। नाउ sedatives, these drugs interact with the central nervous system to depress the activity. sedation क्या होती है, डिजीनेस होना, नींद आ जाना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्लो हो जाना। सो सिडेटिव ड्रग्स क्या करते हैं, इट इंड्यूस डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब है बहुत ज़्यादा चक्कर आना। लिथार्जी मीन्स इन एक्सट्रीम weakness and slow brain functioning and depression. So long term usage of sedatives induce suicidal thoughts. So ये sedatives आपको आपके को साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली इतना वीक कर देते हैं कि आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। सो नारकोटिक्स दे आर द स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स। इनिशियली आपको पता है नारकोटिक्स को, मॉर्फिन को एज ए पेन किलर ड्यूरिंग सर्जरीज एंड आफ्टर सर्जरीज यूज़ किया जाता था। नाउ दे आर, बिकॉज अब हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, सो अब हम इनको बहुत कम जगहों पे यूज़ करते हैं। मोस्टली हम डायज़ेपाम या सेडेटिव्स को यूज़ करते हैं जिससे नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा इसकी स्लो फंक्शनिंग से मसल्स और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। So these drugs are often prescribed in conjunction with the other less potent painkillers like paracetamol and aspirin. इसको अकेला नहीं इसको प्रिस्क्राइब किया जाता, ये इन कंजक्शन इनको दूसरी मेडिसिन के साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है। These are usually pain relievers with the chronic diseases like cancer. So these are also used to relieve acute pain after operations. So, but some people may abuse narcotic for ecstatic effects. Ecstatic effects, ecstatic effects mean pleasure for a limited time. कुछ देर के मज़े के लिए, और उसके बाद वो आदी हो जाते हैं, and then they become addict to these drugs. So morphine and codeine are the narcotics derived from opium poppy. Morphine acts on direct central nervous system to relieve pain. Morphine have high potential for addiction. The commonly used abusive narcotic drug is the heroin, which is a semi-synthetic drug from morphine. Semi-synthetic का मतलब है कि ये जो सिंथेटिक ड्रग्स है उसी के अंदर कुछ चेंजेस करके, उसी के कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को चेंज करके हम इसकी इन ड्रग्स को बनाते हैं। सो इन इफेक्ट इट इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑल्सो कॉज ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस का मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ जाना। So in many Western countries, heroin is prescribed as a strong analgesic. Analgesic means painkiller under the name of diamorphine. Its uses includes treatment for acute pain such as severe physical trauma, severe myocardial infarction. Myocardial infarction means heart attack, and post-surgical pain. अच्छा जी, हेलुसिनोजेंस क्या हैं? हेलुसिनोजेंस वो ड्रग्स हैं जो आपके परसेप्शन, थॉट, इमोशन एंड कॉन्शियसनेस को चेंज करते हैं। दीज ग्रुप इंक्लूड मैस्कलीन एंड विच कम्स फ्रॉम द कैक्टस प्लांट एंड साइलोसिन विच कम्स फ्रॉम द मशरूम। ये जो हेलुसिनोजेंस हैं दे कॉजेज द हेलुसिनेशंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि हेलुसिनेशंस क्या हैं। हेलुसिनेशंस वो ऐसी थॉट प्रोसेस है विच आर नॉट which have no basis in reality but they appear entirely realistic। यानी कि जिसको hallucinations means वो इंसान उसको ऐसे डिस्क्राइब करता है जैसे एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, एक्चुअली इट एक्चुअली हैपन्स, बट इट इज़ नॉट। सो दीज इन प्रॉब्लम्स को लाइक बाईपोलर, शिज़ोफ्रेनिया, बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए ये हेलुसिनोजेंस का यूज़ किया जाता है। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शनली क्या इनको क्या यूज़ करते हैं? हेलुसिनोजन इफेक्ट द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एमरजेंसी की प्रिपरेशन के लिए बॉडी को यूज़ करते हैं, उसको ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इट कॉजेज द डायलेशन ऑफ प्यूपल। डायलेशन ऑफ प्यूपल मीन्स आँख का बहुत ज़्यादा खुल जाना, कंस्ट्रिक्शन ऑफ सम आर्टरीज एंड राइज इन द ब्लड प्रेशर। ये एक्चुअली हैं तो फ़ाइट और फ्लाइट मोड को ऑन करने के लिए, बट इनको हम कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं हेलुसिनोजेंस को। नाउ marijuana is a hallucinogen which is smoked. It is obtained from the flowers, stems and leaves of marijuana plants. इनिशली तो marijuana की
कल्टीवेशन पाकिस्तान में बैन थी, नाउ कुछ स्केल पे ये अभी भी हो रही है, बिकॉज हेलोसिनोजेंस को कुछ प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. स्मॉल डोज ऑफ marijuana result in the feeling of well-being. So marijuana is one of the most commonly used drug in the world, following only caffeine, nicotine and alcoholic beverages in popularity. Now let's move on. What are the types of drugs, addictive drugs? So some drugs are obtained from the salvia divinorum, some datura, cannabis, psilocin mushrooms, morning glory and psychot, which is also a cactus plant. So ये वो plants हैं जिनसे हम hallucinogens या के hallucinogens ले जाते हैं. So high dose of hallucinogens that increase the heart rate. It also affect the production of sperms in men and also weak the short-term memory. So naturally ये सब प्रॉब्लम एडिक्टिव ड्रग्स के साथ हैं. नाउ ड्रग एडिक्शन इज़ आ प्रॉब्लम. सो ड्रग एडिक्ट कौन कौन से ड्रग एडिक्शन के साथ फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं. सो ड्रग अब्यूजर्स गो थ्रू द विड्रॉल ऑफ सोसाइटी contact or communication. Many studies by the experts of social sciences prove that there exists a close relationship between drug addiction and crime. यानी कि जो ड्रग एडिक्ट होगा वो क्राइम भी कमिट करेगा. सो द कंपल्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग मेक्स एवरी एडिक्ट अ लॉ वायलेटर. तो पहला इफेक्ट क्या है कि जो लॉ को वायलेट करेगा और उसकी क्रिमिनल अप्रोच बन जाएगी. सो मेयर पोजेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग इज़ अ वायलेशन ऑफ लॉ. सो दस एवरी ड्रग एडिक्ट should be prosecuted and should be subject to the arrest by the police. अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से नारकोटिक ड्रग्स का प्रॉब्लम इन्वॉल्व हैं, लाइक रॉबरी, शॉपलिफ्टिंग, बर्गलरी, एम्बेजलमेंट. सो ये सारी के सारी sort of thefts हैं. So drug addicts may commit violent crimes since many become psychic patients. The addicts are very weak in their social behavior. वो socially अपने आप को isolate रखते हैं बिकॉज कुछ सोशल स्टिग्मास अटैच हैं इसके साथ कि बिकॉज सोसाइटी डिसलाइक्स देम, सो बिकॉज ऑफ देयर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर दे आर सोशली. कभी ये आपने देखा होगा ड्रग एडिक्ट्स कभी रोना शुरू कर देते हैं, वीकली दे आर वेरी वीक, बहुत वायलेंट हो जाते हैं, अपने आप को बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं. सो दीज ड्रग्स अब्यूज़. सो वो एक है. सो ड्रग अब्यूज़ दे शुड बी ट्रीटेड, आइदर दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड. सो मोस्टली पहला स्टेप है उसको ट्रीट करें, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लेके जाएं और उसके बाद फिर अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो देन दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज इट इज़ अ क्राइम. सो ड्रग अब्यूज़र से ज़्यादा, ड्रग एडिक्ट से ज़्यादा ड्रग प्रोवाइडर को पनिशमेंट मिलनी चाहिए. नाउ व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स. सो एंटीबायोटिक्स क्या हैं? कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसको हम बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए या बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं. सो व्हाट आर एंटीबायोटिक? दे आर द ड्रग्स दैट किल्स और रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. They are the chemical produced or derived from the microorganism like bacteria and fungi. अब इनके मोड ऑफ एक्शंस क्या हैं? सो ये एंटीबायोटिक्स या बैक्टीरिया को किल करते हैं या बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करते हैं. सो दीज आर टू ट्रीट मैनी डिफरेंट बैक्टीरियल प्रॉब्लम. सम आर बैक्टीरिसाइडल and some are bacteriostatic. Bactericidal means they kill bacteria and bacteriostatic means they stop the bacterial growth. There are three major groups of antibiotics. कौन सी हैं? Cephalosporin, tetracycline and sulfa drugs. So cephalosporin क्या करता है? It interfere with the synthesis of bacterial cell wall, so it is bactericidal. So bactericidal means they kill bacteria. So cephalosporins are also used to treat pneumonia, sore throat, गला खराब, tonsillitis जो tonsils का में इन्फेक्शन हो जाए या ब्रोंकाइटिस या सांस की प्रॉब्लम हो जाए, इन सबको ट्रीटमेंट के लिए सेफलोस्पोरिन होता है. टेट्रासाइक्लिन दे आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स जिनको हम बहुत प्रॉब्लम से
एक से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इन बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं. सो दे माइट बी बैक्टीरियोस्टैटिक और दे माइट बी bactericidal. So bacteriostatic means they inhibit the bacterial protein synthesis. Tetracyclines are used in the treatment of infections of respiratory tract, urinary tract, intestinal tract. So tetracyclines are not used in children under the age of 8. So इसको स्पेशली जब उनकी मिल्क टीथ का टाइम हो. So sulfur drugs are synthetic antibiotics. They contain sulfonamide group and they are also the broad spectrum bacteriostatic, means they stop the growth of bacterial strains. They inhibit the folic acid synthesis in bacteria. They also used to treat pneumonia and urinary tract infections. So some antibiotics are broad spectrum antibiotics because they are treat for the, some are broad spectrum, some are the narrow spectrum. Broad spectrum means they are used to treat the wide range of infections, and narrow spectrum means they use only few types of bacteria. Now, what are antibiotics and how they work? So millions and millions of problems are there. So for their treatment, हम इंसानों ने क्या बना लिया. अब आप देखें 20 out of 1020 people they are infected by either one every 1% from 50 they are infected. So antibiotics are either they kill the bacteria or they स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. अच्छा, इन बैक्टीरिया को हम वायरल प्रॉब्लम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बट ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं. अब एंटीबायोटिक को देखने के लिए हमने देखना है कि बहुत सारे पैथोजेनिक मीन डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं. जब भी वो हमारे इम्यून सिस्टम में एंटर होते हैं दे ओवर पावर द बॉडी. सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनाई थी पेनिसिलिन, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी. एंड एक्सीडेंटली उसको पेनिसिलिन ग्रोथ तो नज़र आई जब उसने कट किया था सिट्रस फ्रूट को, और उसके बाद से फिर एंटीबायोटिक्स की सिंथेसिस स्टार्ट हो गया. अब एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जा सकता है. 1940 में पहली दफ़ा बल्क अमाउंट में इन एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया गया. अब देखते हैं कि एंटीबायोटिक हम इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है. इसके 3 मेथड्स हैं, नेचुरली, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक. नेचुरली फॉर एग्जांपल जिस तरह हम प्लांट्स में से पेनिसिलिन लेते हैं, फंगस से पेनिसिलिन को फर्मेंटर में ग्रो करेंगे और उसके बाद हमारे पास बल्क अमाउंट में पेनिसिलिन अवेलेबल होगी जिसको हम एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ करते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक. सो सिंथेटिक क्या है? सिंथेटिक होली सोली इट इज सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी. नाउ हाउ डू एंटीबायोटिक वर्क? एंटीबायोटिक की वर्किंग मैं बताई थी. कुछ होंगे बैक्टीरियासाइडल और कुछ होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक. अच्छा, वायरल प्रॉब्लम पे ये एंटीबायोटिक असर नहीं करते. सो दे किल आइदर दे स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ or they kill bacteria. So so some bacteria they either change the DNA of a bacteria. So whenever कोई भी एंटीबायोटिक अगर बॉडी में एंटर हो, अगर वो डीएनए को अफेक्ट कर रहा है देन इट मीन्स कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए की ग्रोथ को स्टॉप किया जा सकता है, जिससे वो एंटीबायोटिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकते हैं. अच्छा, अगर बैक्टीरिया वायरल प्रॉब्लम में हम बैक्टीरियल यूज़ करें तो इससे एक और प्रॉब्लम अराइज होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. इसको हम आगे फर्दर देख लेते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है. ये एंटीबायोटिक का बनना एक ग्रेट अचीवमेंट था अप टिल द 20th सेंचुरी. नाउ अब हम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन हमारे पास एंटीबायोटिक्स भी हैं. सो अगर इनका मिसयूज़ किया जाए, एंटीबायोटिक्स में का मिसयूज़ किया जाए, तो अब देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जिन पे एंटीबायोटिक असर नहीं करती. सो इट मीन्स कि उनके अंदर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है. सो ये एक ऐसी वेरिएशन है कि अगर एंटीबायोटिक एक ही दफ़ा हम बार बार यूटिलाइज़ किए जाए और उसकी ग्रोथ को स्टॉप नहीं करेंगे, सो आई दे प्रोड्यूस सम अदर कॉम्बिनेशंस for the antibiotics. Now let's move on the vaccines.
सो वैक्सीन्स क्या है? वैक्सीन्स के पहले हम देख लेते हैं, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं वैक्सीन्स के, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। सो इम्यून सिस्टम क्या है? हमारे पास हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस हमारे आसपास हैं। हर कोई तो प्रॉब्लम कॉजिज नहीं होता, बट कुछ अगर हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं या ट्रेस पास करके हमारी बॉडी में एंटर हो जाएं, सो दे बिकम अ वेरी डेंजरस एंड दे बिकम द डिजीज़ कॉजिंग। जब ये डिजीज़ कॉजिंग हो, इसके पास डिजीज़ कॉज कैसे होती है? प्रोटीन, इसकी बैक्टीरिया की बॉडी में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स होते हैं। अब अगर तो हमारे कुछ वाइट ब्लड सेल्स के पास कुछ सेल्स हैं जिसमें बीटा सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं। सो अगर तो एंटीबॉडी का मैच कर जाए तो उसको आहिस्ता आहिस्ता किल कर सकते हैं या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ ना कुछ डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एग्जैक्ट मैचिंग का एंटीबॉडी होनी चाहिए। अब एक दिन में ये प्रॉब्लम्स बिलियंस और बिलियंस सेल्स हमारी बॉडी में बन जाते हैं, और उनके बाद जब हम एंटीबायोटिक्स को, वैक्सीन्स को यूज़ करते हैं, तो इन वैक्सीन से हमारे बॉडी में किल पैथोजन से हमारी बॉडी के अंदर इन इम्यून सिस्टम में मेमोरी सेल्स डेवलप होते हैं। जब ओरिजिनली हम वो कोई भी अटैक करता है, तो हमारे जो मेमोरी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स के, बीटा सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, वो उस हम रिकग्नाइज करते हैं कि दे आर द एनिमी, और उसको वो प्रॉब्लम कॉज करने से पहले डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस इज़ द वे। बिल्कुल ऐसे ही वैक्सीन्स में क्या है, हम किल्ड पैथोजेंस बॉडी में डालते हैं, वीकेंड होते हैं, किल्ड होते हैं। हमारे बॉडी के सेल्स में, हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बन चुके होते हैं। दीज मेमोरी सेल्स रिकग्नाइज देम एंड ऑल्सो दे किल देम। सो दिस इज़ द वे। नाउ अब वैक्सीन क्या है? Vaccine is a material containing weakened or killed pathogen, and it is used to produce immunity by stimulating the production of antibodies. In 1796, a British physician, Edward Jenner, infected a young boy with cowpox by injecting pus cells. It was an experiment, but it comes out with a success. After the boy had recovered from the cowpox, Jenner injected the pus cells from smallpox patient into him. The boy did not get smallpox. So it became clear intentional infection with cowpox protected the people from the smallpox. So this method was named as vaccination, and the substance used to vaccinate was called a vaccine. अब vaccines क्या हैं? Pathogens contain special proteins called antigens. So when pathogens enter the body or the blood of host, these proteins stimulate the immune response in the host. So synthesis of antibodies, that antibodies bind to the pathogen and destroy them. So in addition, some memory cells are produced. अब वो मेमोरी सेल्स हमारे ब्लड में रहते हैं। जब इन्फेक्शन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इन्फेक्ट करने के लिए आता है, सो बॉडी दीज सेल्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द future infections. So, when a vaccine weakened or dead pathogen introduced into the bloodstream, the white blood cells are stimulated, beta lymphocytes recognize weakened or dead pathogens as enemies and start producing antibodies, और यही antibodies फिर protection provide करती है against any pathogens which are already present. So vaccines, वही आप देखें, हमने कोविड से हम कोविड के हम पीरियड से गुजरे हैं। अब नाउ इस कोविड-19 के बहुत सारी वैक्सीन्स आ गई हैं कि अगर फर्दर ये प्रॉब्लम आता है, बिकॉज़ ये फर्दर को हम इरेडिकेट नहीं कर सकते प्रॉब्लम को। अब ये प्रॉब्लम अगर इस दुनिया से इरेडिकेट नहीं हो सकता, तो हम उसको एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ ना कुछ हम ट्रीटमेंट या कुछ ना कुछ प्रिवेंशंस करते हैं। सो वैक्सीनेशन इज़ अ प्रिवेंशन. सो चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू बी वैक्सीनेटेड बिफोर अटेंडिंग द स्कूल, बिकॉज जब स्कूल जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम लाइक पोलियो, वूपिंग काफ, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, सो इसके अलावा जब वैक्सीन्स हो जाती है, उसके बाद हमें उसके बूस्टर शॉट्स की ज़रूरत पड़ती है. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द pharmacology, antibiotics. So hope you learn a lot from this lecture.
If you have any question, please do ask me, and thank you so much for listening me.